याचं नाही ते हे याचं .NET Core 6.2. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you for the confirmation. Thank you. Thank you for the reference. Thank you for the confirmation. So let us begin. Okay. So we have started with first a business of a moment where, as I have mentioned, whenever we look over any data set or any business, our first approach or our first intention of understanding that particular business or data set is based on average, comparing that average value or that milestone. We will compare how data is been performing based on average. We will see how data are far away, how data are below, how data is moving on, and by any means this is our average. But instead of always relying on average, we should think of other measures, which is median and mode. Here, average is always getting deceived. Deceived matlab, again, data pre-processing is a part where we eliminate those issues. But anyhow, and in a format of, let's say in a raw format data, or let's say in a data set where you haven't processed with any data pre-processing steps, there always or majoritarily you will find that average is a value which is always getting deceived by outliers. To avoid it, it is very much preferable that we should calculate everything based on median. Once you resolve the issue, then you can go with the formulas which are being provided. Okay. Why I'm saying this? Because you might say that variance is a particular point, or let's say one of a process where we compare the values. In that also you'll find there's a x over here, x, that is nothing but it is also mu. Okay, mathematical terms में x को denote किया जाता है mu से, average से. Here it is average. तो आप बोलोगे सर जब फॉर्मूला में ही एवरेज दे रखा है तो हम कौन होते हैं मीडियन को यूज करने वाले? यस, दैट इज वेरी करेक्ट फॉर योर अजम्पशन. बट द थिंग इज, उनका ये फॉर्मूला बनाने के लिए, उनका ये फॉर्मूला हमें यूज करने देने के लिए, दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट सम अजम्पशंस. अजम्पशंस मतलब क्या है? अगर आपको मैं कहता हूं कि मुझे आंसर 4 चाहिए और उसके लिए आपको मैंने एक इक्वेशन दे रखा है, यू डोंट नो व्हाट नंबर इज देयर, बट देयर इज दिस +2. अब ऑब्वियसली ये जो +2 का आपका अजम्पशन होगा ये 2 ही होगा, ये कोई 6 या 7 या 8 नहीं होगा. व्हाई यू आर टेकिंग अजम्पशंस बाय विद दिस वैल्यू 2 ओनली? बिकॉज it is very logical that 2 plus 2 is 4. In the same scenario, here we have taken average as a calculation in that value as in calculation in that calculation. The reason is that this formula is assumed. Okay, assume मतलब क्या है? ये हम सोच के ही चल रहे हैं. Okay, considering that उसे कहते हैं assumption. ये assumption है कि आपने डेटा प्री प्रोसेस कर लिया है और उसके बाद ही आप वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कर्ट्यूसेस, जो भी कुछ है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो. Okay, that is what is this all things are about. So you have mean also, you have median and mode and all this. So we did started yesterday with first business moment.
Okay, first business moment, which is also called as central tendency. Here, why central tendency? Because based on certain medium, let's say certain middle value or certain value, we are comparing each and every data point, how they are been spreaded, how they are been performing. So whenever you have a data set and if it is of a numeric type, okay, न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन सा होता है? इंटीजर भी होता है और होता है फ्लोट, दोनों होता है. ओके, इंटीजर मतलब होल नंबर, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स. सो एनी हाउ दोनों न्यूमेरिक डेटा आपके पास में होता है. इफ दैट इज बीन फॉलोड बाय दिस डेटा टाइप, आप सिंपली विदाउट कंसिडरेशन आप तीनों ऑप्शन यूज कर सकते हो. कौन से तीनों ऑप्शन? मीन, मीडियन एंड मोड. विदाउट डाउट आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. बट व्हेन द डेटा इज कैटेगोरिकल, categorical means when the data is divided in such a way that you have, let's say, quantity column. Though quantity is a quantity here is a numerical data, but there is a but the data type is categorical. Gender, um, gender and further region. Okay, likewise. If the data is divided in such a way where the data is in categorical format मतलब क्या? Binary भी हो सकता है यहाँ पे. Binary means क्या? Let's say it's a A product. एक A करके product है. You are recording whether your clients or let's say whether those people who are in your list are buying it or not. So अगर उन्होंने buy किया तो आप लिखोगे yes, अगर नहीं किया तो आप 0 लिखोगे. Okay, 1-0 के हिसाब से. तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? अगर किसी ने बाय किया तो 1 लिखोगे, नहीं किया तो 0 कहोगे. किया है 1 0 1 1 1 0, विच मीन्स आप यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे देख रहे हो अकॉर्डिंग टू द ए प्रोडक्ट, वट एवर डेटा वी आर लुकिंग ओवर हियर, बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली. हियर 0 इज designated for specific outcome which is not. 1 is designated for specific outcome which is yes, got, है ना? बाय किया है, यहाँ पे नहीं किया है. तो इस तरह से आप दो हिस्सों में भी कर सकते हो. अगेन ये क्या है? कैटेगोरिकल डेटा है. दो इट इज सीम टू बी लेट्स से न्यूमेरिकल डेटा, बट यहाँ पे आप अगर मुझे बताइए, अगर आप फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि मैं इसका मीन निकालूंगा, और मीन फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अभी कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है. और कितना रिकॉर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. ओके, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. 4 5 × 45, 4 6 7 5 × 48, हाँ 6 पॉइंट समथिंग जो भी होगा आंसर आएगा. ओके 54, सॉरी 6 नहीं होगा. ओके जो भी आंसर आएगा, हाँ 48 होगा. ओके तो 6 पॉइंट जो भी आंसर आएगा. बट ये 6.0 जो भी आपका आंसर आएगा, एवरेज जो भी आंसर है, क्या ये पॉइंट में यहाँ पे यूज करने में और क्या, या फिर यहाँ पे इसको एनालिसिस करने में क्या यहाँ पे कोई लॉजिकल उसका आंसर मुझे मिलेगा क्या? क्या वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है क्या? बताइए आप लोग. गाइस, नहीं सर. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. am I not audible? Yes, sir, audible. You are audible, sir. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो मुझे बताइए, अगर डेटा आपका इस तरह से बाइनरी डेटा है, हाँ बघा, चेक करो यहाँ पे, अगर आपका डेटा सेट कुछ इस तरह से बाइनरी डेटा सेट है, ओके, और आपने उसमें क्या निकाला? टोटल निकाला, उसका एवरेज निकाला. अभी एवरेज यूज करके क्या आपको इस पर्टिकुलर कॉलम का कुछ यूज है क्या? वो बताओ मुझे. No, sir. No. No, sir. No, sir. ओके, No, sir. so No, even though this seems like the data inside this, let's say a कॉलम के अंदर में जो भी डेटा सब न्यूमेरिकल डेटा है, but you cannot use mean and median over here because it doesn't make any sense. तो ऐसे केस में क्या है? आपको यूज करना पड़ेगा मोड. ओके, यस, हियर यू विल अंडरस्टैंड. पीपल हु लेट्स से द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 and 1. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके शॉप में कोई बंदा आता है तो क्या ए प्रोडक्ट खरीदता है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? खरीदने वाले की ज्यादा है या ना खरीदने के वाले की ज्यादा है? तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं. अगर ज्यादा है तो ए होगा, कम होगा तो 0 होगा. क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now any query regarding mean, median and mode है कोई ऐसा जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज पुट ऑन कीजिए. Yes, anyone? सर नहीं समझ रहे. काय नाही समजलं. तिने एक वेळ समजू द्या ना प्लीज. कोणतं? मेन कोणतं मीडियन ex- आणि मोड. मॅम आपण कालपासून डिस्कस करतोय मीन मीडियन मोड. आप कल थे सेशन में? हो होती पण आज थोडं कॉन्सेप्ट नाही क्लिअर होते. ठीक है, आप क्या कीजिए, कल का वीडियो देखिए. कल का वीडियो देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप कीजिए. मैं आपको लिंक भेजता हूँ, हम मीट करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? ओके, हु वाज दैट आस्किंग? कौन थे वो? अभी कौन थे जिसको मीन मीडियन मोड नहीं समझ में आया? अश्विनी. अश्विनी. ओके, तो अश्विनी मैम आप क्या कीजिए, कल का वीडियो देखिए. ओके, उसको समझने की कोशिश कीजिए. फिर भी नहीं समझ में आता है, डो नॉट वरी. आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं आपको लिंक भेजूंगा. देन वी कैन हैव वन ऑन वन मीटिंग ऑल्सो. ओके, ठीक है. ओके. या यस गजेंद्र, एनी क्वेरी? आपका माइक ऑन है. Yes, so for the median, we need to arrange the data in ascending order. It is compulsion. यस यस, गिव एन एग्जांपल आल्सो. तो अभी आपको मैं मीडियन के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ. ओके, फिर से जो हमने कल किया था बेसिकली. अब जैसे हमारे पास में डेटा सेट कहाँ चले गया? ठीक है, कोई इशू नहीं. ओके, यहाँ पे हमारे पास में कुछ वैल्यूज है. ओके, अब इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, आई जनरेट इट. लेट्स से रैंड बिटवीन. किसी भी रैंडम वैल्यू को जनरेट करने के लिए विद इन अ सर्टन इंटीजर, ओके, विद इन सर्टन रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज, तो आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना होता है. जैसे यहाँ पे रैंड बिटवीन करके फंक्शन है, नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, तो रैंड बिटवीन करके फंक्शन है. इस रैंड बिटवीन का फंक्शन का काम है कि इंटीजर वैल्यूज, नो फ्लोट वैल्यूज. फ्लोट डेसिमल वैल्यू कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. तो रैंडम वैल्यूज, रैंडम इंटीजर नंबर्स को जनरेट करने के लिए इस फंक्शन को यूज किया जाता है एक्सेल में. ओके, तो रैंड बिटवीन अभी कभी भी याद रखिएगा, एक्सेल में फंक्शन फॉर्मूला लिखने के लिए इज इक्वल टू कोई भी स्टार्ट करना है और वो फंक्शन का नाम कॉल आउट करना है. कॉल आउट करने के बाद में क्या होगा, रैंड बिटवीन करके जो फंक्शन है उसको सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अप डाउन एरो, ऐसे नहीं, ऐसे आप अप डाउन एरो ऐसे कर सकते हो. ओके, अब नीचे 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 करके, तो जहाँ पे ब्लू मार्क आ जाता है वहां पे आपको एंटर नहीं करना है. एंटर करने से क्या होता है, वो नीचे चला जाता है. फंक्शन जो फंक्शन कॉल आउट किया है वो अप्लाई नहीं होता है. आपको यूज करना है टैब. टैब या माउस से डबल क्लिक, दोनों में से कोई एक. डू नॉट प्रेस एंटर. ओके, प्रेस टैब. टैब करने से एक्टिवेट हो जाएगा. अब विद दैट फॉर्मूला, सॉरी नॉट फॉर्मूला, विद दैट फंक्शन देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स विथ यू हैव टू प्रोवाइड अ पैरामीटर. दो आर्ग्यूमेंट कौन सा है, एक आर्ग्यूमेंट है बॉटम का, दूसरा आर्ग्यूमेंट है टॉप का.
पहला आर्गुमेंट क्या बोलता है, आप बॉटम प्रोवाइड करो। बॉटम में आपको कोई वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा ना, उसे पैरामीटर कहेंगे। पैरामीटर मतलब क्या, ऑब्वियसली पैरामीटर मतलब क्या होता है, किसी का घर का पैरामीटर कैसे नापते हैं, बेस्ड ऑन इट्स बॉर्डर, इजंट इट। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या बताता है, बॉटम कैन बी एनी वैल्यू, बट व्हाट वैल्यू यू वांट टू प्रोवाइड, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है मुझे वो बताइए। ओके, तो बॉटम वैल्यू मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और बिट टॉप टॉप मतलब हाईएस्ट कहाँ तक लेके जाना है। उन दो के बीच में मैं आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करके दूंगा, इंटीजर अगेन। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं रैंड बिटवीन कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं 10,000 एज एन एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, कॉमा। जैसे आपका फर्स्ट आर्गुमेंट कंप्लीट होता है, कॉमा देने से देखो आपने इंस्टेंटली फोकस किया होगा, देखो मैं यहाँ पे देखो कॉमा देने से क्या हो रहा है, देखो ऐसे शिफ्ट हो रहा है, बॉटम टॉप बॉटम 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 टॉप। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, शिफ्ट होता है, दूसरे आर्गुमेंट पे शिफ्ट होता है। वो बॉटम कंप्लीट हो गया, कॉमा दे दिया, नेक्स्ट क्या है आपका, लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60,000, ये मेरा दूसरा आर्गुमेंट। ओके, सो कंप्लीट होते क्या करना है, फिर से ब्रैकेट कर देना है, क्लोज नहीं दोगे तो भी अपने आप ले लेता है, क्लोज कर देना, एंटर कर देना है। उससे क्या होगा, 10,000 और 60,000 के बीच में से रैंडम वैल्यू जनरेट होंगे, ये ऐसे वैल्यूज आपके जनरेट हो जाएंगे। मैं कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, क्या किया मैंने, इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर दिया, शॉर्टकट की है। ओके, कंट्रोल सी कर दिया और कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। फॉर एग्जांपल आपको पहले दिखाता हूँ यहाँ पे क्यों मैं पेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से आई पेस्टेड ओवर हियर। मेरा पेस्ट करने का रीजन क्या है, अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया इस फंक्शन को, ओके इस पर्टिकुलर फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, तो क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेव करता हूँ। ओके हाँ, अब यहाँ पे देखो मैं आता हूँ ना और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे स्केप करता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं दूसरे शीट में आके फिर से यहाँ पे आता हूँ और किसी भी तरह का फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे इज इक्वल टू सम करके जो कुछ भी है, एंटर कर दिया और इससे मैंने ये सम दे दिया, एंटर कर दिया। देखो हर बार क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है, ये जो है ना, ये आपका फंक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। सो वेन एवर इफ शीट्स गेट्स रिफ्रेश, वो हर समय क्या, नया डेटा आपको जनरेट करके देगा। ओके, क्या करता है वो, नया डेटा आपको जनरेट करके देता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जैसे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, पूरा डेटा रिफ्रेश हो, देखो नया डेटा आ गया। ओके, ये देखो नया डेटा आ रहा है। तो इस तरह से क्या है, वो नया डेटा कंटिन्यू जनरेट करते रहेगा, और नया डेटा हर बार जनरेट करता रहेगा तो क्या होगा, रैंडम वैल्यू आता रहेगा, वो क्या होगा, अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो टू अवॉइड दैट रैंडमनेस, कंटिन्यूस रैंडमनेस, हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को एक बार लगाने के बाद में एज ए वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो उसको ओके, तो उस रैंडमनेस को कंटिन्यूस ना रहने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल सी, और अदरवाइज होम में जाके आओगे तो यहाँ पे भी कॉपी करके, ओके इसे कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल सी कर दिया, और आपको अगर कहीं और पे पेस्ट करना है तो वहां पे भी कर सकते हो, या तो उसी के ऊपर करना है तो कर सकते हैं। तो अगर कहीं और पे करना है तो जहां पे भी सेल होता है मेरा, ओके देखो मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो मुझे वहां पे सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्टिंग दैट सेल, ओके व्हाट आई कैन डू इज दैट, मैं वहां से सेलेक्ट करके उसे यहाँ पे कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इफ आई सेलेक्ट दिस सेल तो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से करूंगा तो इसके नीचे आएगा, है ना, यहाँ से करूंगा तो यहाँ से नीचे आएगा। एक्सेल में क्या होता है, जहां से सेलेक्ट करके उसके नीचे डेटा आता है, कभी भी उसके ऊपर नहीं आता। ओके, क्या होता है, सेलेक्ट करोगे उसके नीचे आएगा, क्योंकि डेटा नीचे तरफ है, लाइक दिस। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और दिखाता हूँ, लेट्स से मैं इसको एस्केप करता हूँ और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, देखो ऊपर से ही नीचे आता है। ओके, नीचे से ऊपर नहीं आता है, ऊपर से ही नीचे आता है। ओके, इट डजंट चेंजेस, रेंज चेंज नहीं होता है उसका। ओके, अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे आके एज अ वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, कि वो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसे एज अ वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ ताकि चेंज ना हो बार बार। इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। देखो नीचे से ऊपर जा रहा कॉपी, ओके नॉर्मली क्या हम ऐसे आते हैं ना, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया, एज ए वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, देखो सेम वही आता है। ओके, तो ये मत सोचना कि ऊपर से नीचे गया तो अलग आएगा, नीचे से ऊपर गया तो, ओके इट डजंट हैपन लाइक दैट। एनी हाउ, रेंज आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, उससे क्या होगा, इसका वैलिडेट चेंज नहीं होगा। मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड इज फॉर अंडू करने के लिए, जो भी आप प्रोसेस एक बार कर देता हो उसे अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड यूज किया जाता है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ बाजू में आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट एज अ वैल्यू करूंगा। क्या करूंगा, पेस्ट एज अ वैल्यू, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, मैंने सेलेक्ट किया सेल, यहाँ पे आता हूँ,
यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू करके ऑप्शन है। पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है, जो भी डेटा आपके रेफरेंस में लेफ्ट साइड में है वो आपके राइट साइड में देगा, बट वो फंक्शन नहीं करेगा। मतलब जो आपने ऊपर लिखा ना फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे जो फॉर्मूला बार में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। देखो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। सी यू लुक हियर, दिस इज फंक्शन रैंड बिटवीन 10,000 और 60,000 के बीच में वैल्यूज आ रहे हैं, ये क्या है, फंक्शन के आउटपुट है। यहाँ पे कोई फंक्शन है क्या, नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू है। मतलब कल जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं डेटा पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश हो गया। ओके, ये क्या हो गया, ये रिफ्रेश हो गया। लेकिन ये हुआ क्या, रिफ्रेश हुआ है लेकिन उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हर बार इसके बिटवीन रेंजेस की वैल्यूज को रिफ्रेश किए जा रहा है। बट यहाँ पे तो कोई हमने फंक्शन यूज नहीं किया, नहीं तो आउटपुट है, ये तो वैल्यू है। तो वैल्यू रिफ्रेश नहीं होता है। ओके, जो फंक्शन है वो अपडेट होगा, बट जो वैल्यू है वो नहीं होता है। इट विल रिमेन एज इट इज, स्टैटिक हो जाएगा rather than डायनेमिक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. तो एक्सेल में रैंड बिटवीन यूज किया जाता है किसी भी इंटीजर नंबर्स के बिटवीन में रैंडम वैल्यूज को जनरेट करने के लिए। एक रेंज आपने दे दिया, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक एंड करना है, उसके बीच में आपको रैंडम वैल्यूज इंक्लूड करके मिल जाएगा। फॉर दैट पर्पज वी यूज रैंड बिटवीन। ओके, नाउ हॅलो सर. बोला ना। सर ते फॉर्म्युला आणि फंक्शन मध्ये काय फरक आहे म्हणजे कशाला? ओके, ठीक है, गुड क्वेश्चन, बता देता हूँ वो भी। पुढे ना आगे बताने वाला था, बट ठीक है अभी बता देता हूँ। व्हेन वी से फॉर्मूला एंड व्हेन वी से फंक्शन, फॉर्मूला में आप देखोगे कभी भी अब आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आप कैसे लिखते हो, इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से ये जो बी कॉलम है, ओके जो बी कॉलम है, इस बी कॉलम के अंदर में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है, उन सब ऑब्जर्वेशन की मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सम। बेसिकली क्या है, टोटल, नॉट सम, टोटल, टोटल चाहिए। तो कैसे क्या करूंगा मैं उसके लिए, बताइए गाइस। Select Sum equals aggregate to values करते हैं। Select all values. नहीं, मैं फंक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर्मूला, फंक्शन नहीं। Is equal to You sum need to add. इज इक्वल टू sum in bracket select the सम इज data. अ फंक्शन, फंक्शन नहीं। Addition Formula. plus करोगे। Addition एग्जैक्टली, plus. फॉर्मूला Add की all बात जब data. आती है ना, यस, फॉर्मूला की बात होती है तो क्या होगा, ये सेल का रेफरेंस वो दे दो, या तो जो वैल्यू लिखा है वो आपको यूज करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस 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 प्लस, मतलब अल्टीमेटली क्या लिखना पड़ेगा मुझे रेफरेंस के लिए। जैसे मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, इज इक्वल टू, ओके, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, आइदर दिस वे और, हाँ ठीक है, ये करना पड़ेगा बिकॉज उसका फंक्शन नहीं है, इजंट इट। ये है प्लस ये है प्लस ये है, ऐसे एक एक वैल्यू को करना पड़ेगा, और यही लॉजिकल है ना चीज, यही हमने सीखा है, यही हम यूजुअली यूज भी करते हैं ना प्रोसेस, करेक्ट है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। तो एडिशन Yes, आपको sir. करके टोटल मिल जाएगा। बट इसमें जैसे एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है। अब इसमें एडवांटेज क्या है पता है क्या, फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि मुझे 9 नंबर का जो ये रिकॉर्ड है ये नहीं लेना है, तो हाँ मैं कंट्रोल दबा के ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे स्पेसिफिक, हाँ ये 9 नंबर को नहीं लेना है ना, ऐसे प्लस करके ना मैं स्पेसिफिकली जिसको चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकता है, ऐसे ये यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे, ऐसे में मल्टीपल वैल्यू जो मेरे रिक्वायर्ड या फिर जो मुझे लगता है मैं वो भी चूज कर सकता हूँ इन फॉर्मूला। ओके, ना फॉर्मूला में कभी भी रखिए, ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे एक एक वैल्यू का रेफरेंस करते हो और उसका आप आउटपुट देते हो। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये आ गया आंसर आपका। अगेन किस में हुआ है, इन वैल्यूज के साथ, मैंने बीच में कुछ चीजों को छोड़ा है, हमने क्या किया है, बीच में कुछ वैल्यूज को हमने निगलेक्ट किया है, फिर हमने यूज नहीं किया। ओके, ये है फॉर्मूला। ना इस फॉर्मूला एडवांटेज एक चीज ये होता है कि कल मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन दो वैल्यूज के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, ओके, उनका डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन बेसिकली मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मैच करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कैन बी एडहेड और फॉर्मूला कैन बी एडजस्टेड बाय माय रिक्वायरमेंट, वो मेरे हिसाब से मैं कैसे भी कर सकता हूँ।
ओके नाउ ये होता है फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब क्या है? उसका प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड होता है। जैसे यहाँ पे टोटल है, अब टोटल करते समय जैसे मैंने आपको कहा था कि नहीं मुझे इनका डिफरेंस चाहिए इन दोनों के बीच में और बाकियों का एडिशन चाहिए, मैंने कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट फंक्शन की जब हम बात करते हैं, फंक्शन में जो टोटल होता है उसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सम। ओके टोटल का क्या नाम दिया है? सम करके नाम दिया है। क्या करता है वो? आप जब कभी भी सम फंक्शन यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इज इक्वल टू सम फंक्शन का नाम, उस फंक्शन का नाम कॉल आउट करते हैं। नाम कॉल आउट करने से क्या है? टैब, उसमें होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या है? नंबर 1 कॉमा नंबर 2 नंबर 3 एंड, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दिस 3 डॉट्स, तो कंटिन्यूस आप आगे आगे भी बढ़ सकते हैं। एक नंबर कंपलसरी है, सम करने के लिए एक नंबर तो देना पड़ेगा, विदाउट नंबर फंक्शन काम नहीं करेगा। एक नंबर तो कम से कम आपको देना पड़ेगा, भले वो 0 क्यों ना हो, माइनस क्यों ना हो, बट एक नंबर तो देना पड़ेगा। ओके सो नंबर 1 ये क्या है? कंपलसरी है, क्योंकि किसमें? ये पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओके ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में। नंबर 2 कॉमा करता हूं, देखो नंबर 2 में आएगा। नंबर 2 क्या है? देखो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसको कहते हैं, अगर कभी भी कोई भी फंक्शन, अगर आप आर्ग्यूमेंट आपको फंक्शन के अंदर में इस तरह से दिखता है, तो उसको समझना है वो ऑप्शनल। क्या है वो? ऑप्शनल। आपको देना है तो देना, तो मत दो। क्यों? 2 का सम क्या होता है? 2 होता है तो सम होता है, एक सिंगल नंबर का भी सम होता है। ओके नाउ सम में एडवांटेज क्या है? आपको एक एक ऐसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेंज पता है तो क्या करना है? सीधा से सेलेक्ट करना है, रेंज दे दिया, फट से आ गया, समझ जाता है। B2 से लेके B13 तक जो मेरा रेंज है मैं दे सकता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक, जैसे मैंने आपको कहा था फॉर्मूले में जैसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया और फिर मैंने माइनस बीच में ये कर दिया, ये ऐसे एक सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा देके फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे एक नंबर ये दे देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है? ये रेंज के अंदर में ही तो आपका डेटा है ना, उसमें से अगर आप कोई माइनस करोगे तो वो नहीं हो पाता। वंस यू हैव गिवन दिस रेंज, इट विल एक्ट थ्रू ऑल द रेंज। उसके बीच में छोड़ नहीं सकते आप। ओके ऐसे करके ना आप बीच में से छोड़ नहीं सकते। जैसे एक बार मैंने सेलेक्ट कर दिया ऐसे तो कर दिया, इट इज एवरीवेयर। आपको बीच में लगा नहीं मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना था, ऐसे मैं माइनस कर दूं, ऐसा नहीं होता है। ओके वंस इट इज रेंज, वो पूरा रेंज होगा। और दूसरा, कल जाके आपको लगा कि नहीं मुझे क्या करना है ना, इसमें बीच में मल्टीप्लीकेशन करना था, किसके साथ में? ये दो जो है इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन करना है इसी फंक्शन के अंदर में या फिर इसी फॉर्मूला के अंदर में, नहीं कर सकते। वाई? सम को बनाया ही इसलिए गया है कि आपको एडिशन टोटल करके ही देगा वो क्या है? प्री डिफाइंड है, आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा, इट इज प्री डिफाइंड। उसका जो काम है वो करेगा। सम करना है सम करेगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तब मल्टीप्लिकेशन का ही अलग ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, यहाँ पे एवरेज निकालना है मुझे, इज इक्वल टू एवीई, एवरेज आपको निकालना है, तो एवरेज का आपको पूरा रेंज देना है, तो उसका आपको यहाँ पे मीडियन नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसके जाके ना वहाँ फॉर्मूले में डिफाइन करके चेंज करता हूँ, नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट formula is formula is what you create, what you use with operators, combination of operators, combination of your logics, वो क्या होता है? formula. Okay but when you talk about function, function is nothing but predefined formula, predefined formula which you cannot alter. ओके आप उसे अल्टर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने सम कॉल आउट किया है फंक्शन तो सम ही होगा, उसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज ही मिलेगा मुझे, मुझे इसमें मोड नहीं मिलेगा। क्लियर है गाइस डिफरेंस? यस सर। Yes, sir. मगर फॉर्मूला में मुझे अगर कुछ चेंज करना हो तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज माई, मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना। सो देयर आई कैन यूज इट और दैट्स आई कैन चेंज इट बाय एनी मींस। ओके क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट Sir. आर्गुमेंट एंड पैरामीटर? हाँ कोई कुछ क्वेरी था, बोलिए बोलिए। किसी को कुछ क्वेरी था सर अभी ते कुछ? हाँ सर ते टोटल मी असं सर्च मारलं तर 450 काहीतरी फंक्शन्स आहेत वाटतं. आपल्याला ते सगळे यूज करायचे तर काही हाँ हाँ स्पेसिफिक हाँ आहेत नाही नाही असं त्याच्यासाठी? काही नाही आहे. आपण एक्सेल जे शिकणार आहे किंवा जे वर्क करणार आहे ते डेटा ॲनालिटिकल ऍस्पेक्ट थ्रू शिकणार आहे. ओके म्हणजे आपल्याला समजा आता काय होतो,
फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि बैंकिंग के लिए बहुत सारे बैंकिंग के लिए उन्होंने फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। ओके, जैसे POI है, ऐसे ना, पेमेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ, या फिर जो कोई भी है वो आगे का उसमें भी दे रखा है, बट हमें वो जरूरत नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न। हाँ, अगर प्रोजेक्ट उसके रिलेटेड है तो जानना जरूरी है, बट हर एक फंक्शन जो अवेलेबल है एक्सेल में, हर एक आपको आना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं है। ओके, हमारा अप्रोच इतना रहेगा कि हमारे वर्क के लिए एज अ डेटा एनालिटिस्ट, अगर कल आपको कोई बोलता है कि हाँ भाई आपको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो एक्सेल में, तो आपको उतना आएगा, वो ही हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर आपको पूरा एक्सेल सिखाना रहेगा तो 15 डेज क्या, 1 मंथ भी कम है। ओके ओके सर। ओके, नाउ जैसे हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन में आपने सुना होगा, मैं बहुत बार ये दो चीजों को रिपीट करता हूँ, एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, व्हेन से एवरेज। ओके, एवरेज मतलब क्या होता है बताइए, क्या है फॉर्मूला एवरेज का? Sum of observation divided by number of observation. Number of observations. Sum of observation divided by Number of observations. ओके, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला जो है एकदम करेक्ट बताया है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है, जितना भी मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड है मैं सबको ऐड करूंगा। तो ऐड करने से क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू से यहाँ पे आएगा एक्स वैल्यू, क्या आएगा, ये सम एक्स, इसको कंसिडर कर लो, ये वैल्यू आएगा सम एक्स। आंसर आने का मतलब इनका एडिशन होने के बाद में कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए, यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने भी है डिवाइड बाय दैट n नंबर, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा एवरेज रहेगा। अब यहाँ पे जो आप फंक्शन देख रहे हो ये एवरेज का फंक्शन है, इसका मतलब इसके आप अंदर में आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। अगेन हम नहीं देते हैं, हम एक ही देते हैं, बट दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है उसका सम, और फिर होता है उसका काउंट ऑफ नंबर्स। ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है, उस जितने भी ऑब्जर्वेशन उसका एडिशन करता है, एडिशन करने के बाद में देखता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको डिवाइड करता है, तब जाके आपका एवरेज आता है। ये प्रोसेस है एवरेज का, करेक्ट है? Yes. ओके, तो जब आप एवरेज यूज कर रहे हो फंक्शन, आपको कुछ इनपुट मांगता है। वो इनपुट मतलब क्या है, वो इनपुट मतलब है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको रैंडम नंबर क्रिएट करना है। ओके, क्या करना है, रैंड बिटवीन के थ्रू, रैंड बिटवीन के थ्रू हमें क्या करना है, रैंडम नंबर्स क्रिएट करने हैं। कहाँ से कहाँ तक, अगेन रैंडम नंबर हमें क्रिएट करने हैं। क्रिएट करने मतलब क्या क्रिएट करने हैं, क्योंकि रैंडम नंबर अगर सिर्फ बोलेगे तो वो इनफिनाइट नंबर है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रैंडम नंबर क्रिएट करना है, और आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ जो वो आउटपुट देगा वही मुझे क्रिएट करना था, इट बी वेरी इररिलेवेंट। तो रैंड बिटवीन फंक्शन ने क्या किया है, उसके अंदर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको कंपलसरी देने हैं, बता दिया कैसे देने हैं। एक तो बताना है आपको कि भाई स्टार्ट पॉइंट का है, ओके, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है वो बताना होगा। दूसरा है एंड कहाँ पे करना है उसके, क्योंकि ये रेंज है। रैंडम नंबर लेट से 1 से लेके 6 में दूंगा, अगर मैं ये देता हूँ इंटरवल, तो रैंडम नंबर बीच में क्या आएगा, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये रैंडम, इनके बीच का रैंडम नंबर ही आया ना, अकरेंस ऑफ रैंडम नंबर्स, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. इनफाइनाइट तो नहीं दे सकता मैं, तो उन्होंने क्या कहा है, आर्ग्यूमेंट रहेगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका स्टार्ट। स्टार्ट में क्या है, आपको पैरामीटर डिफाइन, पैरामीटर मतलब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट। इस आर्ग्यूमेंट को आपको एक वैल्यू से डिफाइन करना है। पैरामीटर के भी समझ लो कि किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल किसी का ये घर है, ओके, ये क्या है, 2000 लेट से 500 स्क्वायर फुट की जगह है, SQFT स्क्वायर फुट की अगर जगह है, ये कैसे डिसाइड होता है 2000 स्क्वायर फुट, इट मेजर्स है ना, यहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है, फिर टोटल एरिया जो है ये पूरा आपका स्क्वायर फुट में होता है, मल्टीप्लाई करके। तो आपका ये 2500 स्क्वायर फुट का जगह होता है। ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट, क्या है यहाँ पे, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, ये आर्ग्यूमेंट है, लेंथ कुछ भी हो सकता है, ब्रेथ भी कुछ भी हो सकता है, बट ये 2500 डिफाइन करने के लिए आपको क्या है, मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर में जो भी वैल्यू आएगा वो आपका पैरामीटर है। तो स्टार्ट तो नंबर कोई भी हो सकता है, और एंड भी कहीं भी हो सकता है। तो स्टार्ट और एंड का जो वैल्यू आप डिफाइन करते हैं वो होता है आपका पैरामीटर, जो कि 1 और 6 आपके यहाँ पे अभी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके,
ओके, सो ये क्या था, हाँ ये फंक्शन का था। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और ये रैंड फ्लोट नंबर्स। अब कभी कभी क्वेश्चन पे ऐसा होता है कि सर अगर फ्लोट नंबर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँ, और वो भी रैंडम नंबर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे केस में यस, इट इज वेरी वैलिड क्वेश्चन। ऐसे केस में क्या करना है, अगर आपको सिर्फ इंटीजर नंबर चाहिए तो रैंड बिटवीन कर दीजिए। अगर आपको फ्लोट नंबर चाहिए तो आपको ये यूज कर लो। ये क्या करता है, देखो रैंड फंक्शन, यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम दिख रहा है। रैंड फंक्शन क्या करता है, 0 से 1 के बीच में ना इनफाइनाइट जो वैल्यूज है उसका फ्लोट नंबर आपको दे देगा। 0 से 1 के बीच में वो कितना भी हो सकता है। तो आपको अगर चाहिए आंसर तो क्या चाहिए, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये होगा आपका आंसर। जितना भी चाहिए आपको क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शन घसीट लो नीचे, जितना भी आपको चाहिए फ्लोट नंबर की इंफॉर्मेशन या फ्लोट नंबर के हिसाब से भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है, देखो ये जो भी डेसिमल वैल्यूज कितना रखना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो नंबर्स में। उसके हिसाब से आपको जैसा नंबर चाहिए आप वो भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हो। सो विद हेल्प ऑफ रैंड बिटवीन एंड विद हेल्प ऑफ रैंड फंक्शन you can combine to get one float, or let's say any float, random float values which may contain integer also and which may contain float also. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we have this random values। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है मीडियन। ओके, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है गाइस? First of all, ascending order, then Okay, then middle one, selecting the odd one. odd one मतलब क्या है, odd one क्या है? Means मतलब odd number होगा तो मिडिल का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इवन होगा तो Sir, मिडिल के दो ascending नंबर एवरेज करके order. Okay, n over here is nothing but count। Ascending order. ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक पूछना है, अगर ये असेंडिंग नहीं रहा और अगर मैं उसे डिसेंडिंग कर दूं तो क्या ये सिस्टम काम नहीं करेगा? करेगा। करेगा sir. करेंगे। ठीक है। सो एनीहाउ आपको क्या करना है, ऑर्डर में डेटा करना है। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कीप इट इन एज ऑर्डर। बट ऑर्डर में क्यों करते हैं, उसका रीजन है, जब आप कभी भी आपके सिस्टम में, जब कभी ग्राफ में आप पर्टिकुलर वैल्यू को नोट करते हो या फिर उसमें क्रिएट करते हो ना, तो कभी भी आपने देखा होगा मिनिमम इस साइड होता है और मैक्स इस साइड होता है। तो अगर ऑर्डर में डेटा रहेगा ना तो कभी भी क्या होता है कि आपको क्रिएट करने में, बनाने में आसान होता है। ओके, सो फॉर दैट वी क्रिएट दिस। अदरवाइज इसको आप असेंडिंग करोगे डिसेंडिंग करोगे तो भी अगर डेटा कहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू अगर इस तरह से आएगा तो उल्टा करेगा तो कुछ आपको इस तरह से आएगा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. सो अगेन मिनिमम या मैक्सिमम या असेंडिंग डिसेंडिंग इतना मैटर नहीं करता, बट ऑर्डर में करना पड़ेगा। सिंस ऑर्डर इज बाय डिफॉल्ट इन many functions or in any scenario, by default ascending order ही consider किया जाता है। That's why it is ascending. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now ये जो आंसर दिया गया है इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास में देखो ये टोटल नंबर ऑफ जो डिटेल्स है कितने हैं, ये आपके पास में 12 काउंट। अब मुझे कैसे पता चला, यू कैन सी ओवर हियर Right. ये काउंट में। ओके, हाँ ये जो आपका बार था साइड में, देखा यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ गया अपना, ये देखो ये ना, ये इसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे कस्टमाइज स्टेटस बार। ओके, ये जो स्टेटस बार होता है ये स्टेटस आपका बताता है डेटा सेट का। तो आपने जो सिलेक्ट किया है उसका आपको स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, एवरेज है, काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम है। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नहीं आता है, आपको चाहिए तो कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्टेटस बार पे आके राइट क्लिक करना है, उसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि राइट मार्क ये कौन से ओके, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो वो डिटेल्स है वहाँ पे। तो कितना पता चला मुझे, 12 करके है ये मुझे पता चला है। ओके, सो वी हैव काउंट हाउ मेनी, 12। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ। बट आई विल जस्ट से डिलीट वन फ्रॉम हियर, लेट्स से ये वाला डिलीट करता हूँ, ये वाला नहीं करते हैं, लास्ट वाला करता हूँ। ओके, डिलीट करता हूँ। अब इसका काउंट हो गया 11, इसका काउंट हो गया 12। ओके, अब हम करेंगे मीडियन कैलकुलेशन।
फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू मीडियन, नाम है उसका, फंक्शन है मीडियन। ओके, ये हो गया फंक्शन, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे रेंज। रेंज सेलेक्ट करने पे एंटर कर देंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा इसका है 201045। और उसी के बाजू में हम क्या करेंगे, इसका भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने विदाउट राइटिंग और लेट्स से विदाउट कॉलिंग फंक्शन कैसे यूज कर लिया उसको, तो कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे फंक्शन आपके आपके फंक्शन एक सेल में आपने यहाँ पे बना रखा है, फंक्शन मतलब आपने जो यूज किया है मीडियन, वो आपने यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। आपको उसके कॉन्जिक्यूटिव या फिर उसके एडजेसेंट कॉलम में, एडजेसेंट मतलब उसी के बाजू में, उसी के बाजू में अगर कॉलम में सेम फंक्शन यूज करना है, मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे उस सेल में आना है, कंट्रोल आर। क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल आर, तो वो ले लेगा। ओके, नाउ अगर यही फंक्शन आपको नीचे क्या करना है, नीचे यूज करना है, तो कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी कंट्रोल आर दोनों यूज कर सकते हैं। अगेन आप बोलोगे सर कंट्रोल अप कंट्रोल लेफ्ट है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल आर और कंट्रोल डी ये दो ही ऑप्शन है। ये याद रखिएगा। सो आपको मीन ये मीडियन इस चीज का मिल गया। नाउ मीडियन में ये रेंज एक थोड़ा मैं कम करता हूं। ओके, ठीक है। तो देखो, ये आ गया आपका मीडियन, ये आपका मीडियन आ गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो क्या, इफ यू लुक ओवर हियर, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता आउट करता हूं ताकि हम डेटा को एक साथ पूरा देख सके। हाँ, ये तो दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, एक तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पे, तो फंक्शन में आपने देखा होगा, ये जो मैंने अरेंजमेंट किया है ना, ये अरेंजमेंट आप देख सकते हो। देखो 22 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे, तो अरेंज तो नहीं है। फिर आपको जो आंसर मिला है, ये कौन से बेसिस में आप कह रहे हो कि ये सही है। लेट मी टेल यू, होता क्या है। अब देखो, मैं आपके सामने करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और इसे कर देता हूँ सॉर्ट, स्मॉल एस टू, ये कर दिया, कंटिन्यू विद द सिलेक्शन, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ, आंसर सेम रहेगा। तो जब हम फंक्शन यूज करते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन, कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज उसके अंदर में होता है। तो मीडियन क्या करता है, आप जो भी आपको रेंज में डेटा सेट देना है वो दे दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करेगा। जस्ट अ सेकेंड।
ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था, सिंस वी आर यूजिंग फंक्शन मीडियन फंक्शन, तो मीडियन फंक्शन क्या है, विथ इनबिल्ट इंफॉर्मेशन दे के रखा है। वो क्या करता है, इट गोज टुवर्ड्स द डेटा दैट यू हैव गिवन, जो आपने रेंज दिया है उसको वो क्या करता है, सॉर्ट करता है। सॉर्ट करने के बाद में उसका क्या करता है, वो काउंट करता है। काउंट करता है मतलब क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या काउंट आया आपका, COUNT, काउंट कितना आया, 11। 11 क्या है, इट इज एन ऑड नंबर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इनका टोटल करके सम करके एवरेज वगैरह नहीं निकालता है, वो क्या करता है, काउंट देखता है। काउंट देखने के बाद में आपके इस डेटा सेट में जो आपने दिया है, इस डेटा सेट में मिडिल वैल्यू कौन सा है, 11 है, तो क्या होगा इसका मिडिल वैल्यू, ऑब्वियसली आप देखोगे तो ऊपर से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है 6, करेक्ट, और नीचे से 1 2 3 4 5। ऐसे अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो और यहाँ से इक्वली डिवाइड करते हो, तो बीच में क्या आता है, सिक्स्थ जो आता है वो आपका सेंटर का वैल्यू है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, हमेशा सेंटर का वैल्यू। यहाँ पे आपने अरेंज करके किया है, यहाँ पे आपने बिना अरेंज का किया है, दोनों का आंसर सेम टू सेम है। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि अगर काउंट 12 होंगे तो क्या। ओके, अगर आपका जो काउंट है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितना काउंट है आपका, यहाँ पे हमारा काउंट बनता है 12। अब 12 का अगर काउंट बनता है तो बीच की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जैसे वहां पे मिला था, देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 की वैल्यू, चलो फिर नीचे से 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो दो वैल्यू आ रही है, ऊपर से ये वाला, नीचे से ये वाला। अगेन अरेंज नहीं किया ना हमने, ये तो हम बता रहे हैं आपको। लेट मी कॉपी दैट वन, कॉपी दिस वन over here, sort it by smallest, continue with this, okay। तो आप देखोगे तो यहां से ये और यहां से ये, नीचे से ये दो वैल्यू आपके पास में आ रहे हैं। अब दो वैल्यू तो मीडियन नहीं हो सकता, तो उसके लिए मीडियन क्या करता है, जब ऐसा दो वैल्यू बीच में अगर आते हैं, जब कभी भी आपका अगर काउंट कभी भी अगर इवन होता है, ओके, कभी भी काउंट जो हमारे केस में 12 है, कभी भी अगर इवन नंबर्स आता है, तो इवन नंबर के बेसिस में जो दो सेंटर के वैल्यूज है उसको क्या करता है, ऐड करता है, क्या तो, हाँ, तो यहाँ पे E7 और E8, ओके, इसका एड्रेस क्या है, कॉलम E और रिकॉर्ड 7, E7 प्लस इसका एड्रेस क्या है, E8, दोनों का क्या है, एडिशन होगा और डिवाइड बाय 2। एडिशन करने के बाद में जो आंसर रहेगा उसका एवरेज लिया जाएगा। वो एवरेज क्या है आपका, ये वाला 20104.5। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इस तरह से मीडियन का काउंट किया जाता है। मोड का ऑलरेडी आपने कल देखा था, तो वो उस तरह से प्रोसेस किया जाता है। So these are different methods of calculating, the ways of calculating our values. Okay. Now we'll be heading towards measures and measure of variability, which is second business moment. इसका मीनिंग क्या होता है और कब इसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेरिएंस क्या होता है, बिकॉज इन दैट जैसे फर्स्ट मूवमेंट बिजनेस में आपने मीन, मीडियन, मोड ये देखा था, वैसे ही सेकेंड बिजनेस ऑफ मूवमेंट जिसे कहते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूट, और उसे कह सकते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ अ डेटा। ओके, सेकेंड बिजनेस मूवमेंट क्या है, डिस्पर्शन ऑफ अ डेटा। तो वो क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझो कि वेरिएंस क्या है। इफ वी हैव डेटा लाइक दिस और लेट्स से आपका ये एवरेज वैल्यू है म्यू, ओके, जस्ट प्लॉट सम वैल्यूज ओवर हियर।
and ओके नाउ यहाँ पे दो कॉलेजेस है ओके बेसिकली दो कॉलेजेस है आपका एक ए कॉलेज है और एक बी कॉलेज है या फिर पकड़ लो कि दो जॉब अपॉर्चुनिटीज है एक है बी कंपनी और एक है ए कंपनी इंटरव्यू के बाद में जो भी पैकेज आपका डिसाइड होगा या फिर इंटरव्यू देना है कि नहीं अगेन पैकेजेस पे आपकी डिपेंड होता है सोच पे डिपेंड होता है तो इफ यू सी ओवर हियर दिस इज लेट्स से 10 एलपीए बोथ एवरेज इज ऑफ 10 एलपीए दोनों का एवरेज जो मीन वैल्यू है दोनों का 10 एलपीए से एलपीए एलपीए इज सेम वैल्यू ओके 10 एलपीए अब उसके बेसिस में देखोगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 8 यहाँ पे 9 यहाँ पे 11 यहाँ पे 12 यहाँ पे 14 16 और ये 15 यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन 10 है तो 10 पे यहाँ पे आप देखोगे तो लेट्स से 8 9 9.5 9.5 9.2 10 है यहाँ पे तो लेट्स से 11 11 11.5 11.4 13 12 थोड़ा 12 सॉरी इसको 12.5 कर देते हैं और ये 12 कर देते हैं ओके जितने भी वैल्यूज है ना यहाँ पे ये एलपीएस है ओके 10 एलपी आपका एवरेज वैल्यू है उस एवरेज के आजू बाजू में देखोगे तो सैलरीज है और इसके भी ऐसे कुछ सैलरीज है यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि आप कौन सा कंपनी में जाना प्रेफर करोगे बताओ मैक्सिमम पैकेज बी एक या बी में और बी सर और बी 3 लोग बी में गए और ए ओके ए और बी बी हाँ बी सर बी हाँ सर बट हम्म? दोनों का एवरेज पैकेज तो 10 एलपी है। हाँ तो होगा ना तो एवरेज होने से क्या उसमें क्या चेंज होगा ए और बी ओके मोर और क्या है लोगों का कुछ हाँ बी ओके और बी ओके और भी बंदे हैं और कौन से कंपनी में जाना चाहते हो और बी सर बी ए सर और ए सर सर बी अच्छा अब ये जो आपने इनपुट दिया है ना इसके बेसिस पे आपको मैं थोड़ा सा छोटा एनालिसिस बता देता हूँ ओके people who are going towards B company, okay, they are looking for their safety. Okay, safety के aspect से वो जाना चाहते हैं B company में, whereas people who are on A, who are going towards A, they are taking risk. Okay, now बोलोगे अरे भाई ये तो डेंजर चीज है भाई अपना सेफली रहना चाहिए ओके अच्छी बात है सेफ्टी में रहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए अपने सेफ जोन में वर्कआउट करना चाहिए इट्स वेरी गुड बट द थिंग इज पीपल हु आर लेट्स से आस्किंग फॉर बी एज एन कंपनी दे उन्होंने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ उन्होंने देखा कि भले एवरेज 10 है बट 10 के नीचे भी गया तो भी क्या होगा 8 होगा
और उसमें भी चांसेस 9.5 9 अराउंड 9 होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, और 10 के ऊपर जाऊंगा तो कितना जाऊंगा, चलो 13 तो मैक्स है, फिर भी 13 तो 11 11.5 तक चलो हम कर ही लेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, सेफ लॉजिकल थ्रू, सेफ थ्रू उन्होंने कंसर्न किया है कि भाई बी कंपनी इज मच मोर सुटेबल बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लेट्स से थॉट्स ओवर हियर, कंसिस्टेंट, ये कंपनी का परफॉर्म की बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के थ्रू। वेयर रिस्क लोगों वाले ने जो यहाँ पे एक को ऑब्जर्व किया है, दे थॉट कि 10 तो चलो एलपी है ही है, but if I perform well, I have chances, or let's say I have an opportunity where I can go 14, 16, and 15 also. Where I can see that there are people with 16 also and 15 also, also 14. Where in this scenario there is not a possibility over here. Okay, अभी के लिए तो नहीं है. Again, there is also a risk that I may be offered with 5 also. But though there is an average of 10 lakh, it's very obvious that I may get, or let's say based on my skills, again सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं, बेस्ड ऑन माय स्किल, जो उनपे कॉन्फिडेंस है उसके बेसिस पे मैं अचीव कर सकता हूं। तो जो ए वाले हैं, दे हैव लुक्ड ओवर द स्टैट्स। यहाँ पे आप पता चलता है कि यहाँ पे वैल्यूज नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे क्या है, रैंडम, रैंडम भी नहीं कहूंगा, बट यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मलिटी ज्यादा है। यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड the values over mentioned over here are having a huge deviation. Difference, deviation is nothing but difference. Whereas if you look over the data over here, you'll find that there is very less deviation. Difference is very less. So obviously whatever value will be coming for the next, it may be between this range. Whereas over here you will surely find that it will have a huge difference in the range. क्लियर है सबका माइंड, यही सोच के आपने बोला है, आई प्रिज्यूम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, sir. ना आपको डेटा एनालिटिक्स का कोर्स के बारे में पता है, ना आपका डेटा एनालिस्ट के बारे में कोई नॉलेज है, ना आपको डेटा साइंस किसी के बारे में नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स के बारे में अभी आप सीख रहे हो। पीपल हु मे हैव सम नॉलेज, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव चूज दिस, स्टिल योर माइंड इज दैट मच कैपेबल, वो उतना कैपेबल है कि वो एनालिसिस करके आपको बताए। ओके, सो डोंट थिंक कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं, यार मैं तो किसी और बैकग्राउंड से यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली अबाउट टाइम। ओके, शेयर को अगर आपको अगर शेयर के सामने खड़ा कर दिया तो क्या करोगे, भागोगे ना, शेयर से स्पीडी भागना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अ सिनेरियो। जब तक आप उस इवेंट में, आप उस सर्कमस्टेंसेस में नहीं आते हो, तब तक आपका माइंड नहीं काम करता। तो आपको अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे लेके आए। तो आपने कैसे चूज कर दिया, भाई यस मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं वहां पे जाऊंगा, नहीं भाई मुझे लगता है यहाँ पे मुझे सेफ खेलना चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई हैव, और जो भी नॉलेज है मैं सेफ रहूंगा, वो मुझे देखना चाहिए। ये आपके माइंड ने खुद ब खुद किया, कैसे किया, बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स विच आर देयर। ये ना तो मैंने आपको बताया, ना आपको आपने कहीं कहीं से पढ़ा है, इट इज ऑल अबाउट पॉइंट्स विच आर रेलिवेंट टू दैट म्यू। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं वेरिएंस। This pattern, or let's say this analysis that your mind has done unconsciously, okay, आपको बताया नहीं है, वो अपने आप कर रहा है। तो जो अनकॉन्शियसली जो आपका कैलकुलेशन माइंड ने कर दिया है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। दिस वेरिएंस इज नथिंग बट you have one reference value. With that reference value, what you are seeking over here, you are understanding the differences. More the differences, there are chances of next parameter, next value to have with more differences or with that huge difference. Whereas if this is your choice, then there is a probability of value to appear within this range, which is bit normal. Obviously किसी भी नॉर्मल बंदे को आप पूछोगे तो यही चूज करेगा, किसी भी थोड़ा सा जो रिस्कियर है आप नॉर्मल तो ये लेगा। अगेन मैं सैलरी लेने तक का ये चलो आपको बोल सकते कि ये आपका बोलने से अच्छी बात है, लेकिन यही चीज अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और किसी प्रोसेस में लगा दूं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर किसी एक प्रोसेस में लगा दें हम करने के लिए, तो ये गलत खराब प्रोसेस है, ये बेटर प्रोसेस है। क्यों बताता हूँ, किसी भी प्रोसेस में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको प्रोसेस देना पड़ता होता है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, कोई भी है। तो कोई भी बंदा ये देखेगा कि आप कहाँ पे कंसिस्टेंट रह सकते हो, आपका जो भी कोड है, जो कोई भी रन हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, इट शुड बी इन सेफ जोन ओनली। कोई नहीं चाहेगा कि हाँ भाई आपकी वैल्यू हिट रन करके वो आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट से बाहर जाए। ओके, ये तो कैसे पता चलता है, ये बेस्ड ऑन वेरिएंस। जो आपका एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे यहाँ पे, म्यू इज आवर एक्सपेक्टेशन। In reality, is that value following those expectations? If
yes, value will be intact, very close to that mu. If not, it will be far away. So obviously, you will always go for values which are closer to that expectations rather than far away. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब पॉसिबली तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं हर एक वैल्यू का रेफरेंस लूँ, हर एक वैल्यू के ऊपर वर्कआउट करूँ, हर एक वैल्यू के बेसिस में मैं अपने मॉडलिंग को या फिर अपने एनालिसिस को चेंज करूँ. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल इन सब का एक वैल्यू जो डिफरेंस है, एक वैल्यू से हम डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर में हम हमारा एनालिसिस कंक्लूड करेंगे. ओके, तो इस कंक्लूजन को हम कहते हैं वेरिएंस. इंडिविजुअल डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये अगर आपका फर्स्ट डिफरेंस है D1, डिफरेंस 1, इस डिफरेंस को 14 से अगर 10 से माइनस करोगे तो यू विल हैव 4 लाख माइनस, चलो 10 से अगर माइनस 14 करोगे तो माइनस 4 लाख आएगा. बट एनी हाउ इन सिंपल मैथ्स हम करते हैं, 4 लाख का डिफरेंस आएगा. तो 4 लाख का डिफरेंस क्या है, ये इट इज कॉल्ड डीविएशन. ये क्या है, डीविएशन. If you're calculating each and every differences, it will call as a deviation. But since we cannot go through each and every differences, because हर एक बार आपको अलग अलग वैल्यू आएगा, हर एक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं चेंज कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा. So what we take overall deviation, which is called as a variance. Clear है guys सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes. Now let me take an example. अब यही एग्जाम्पल हमारे पास में है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. Based on this data, I'll create one chart. क्या, अच्छा अरेंज हो गया क्या, रैंडमली चाहिए मुझे, ऐसा नहीं चाहिए, सॉर्टेड नहीं चाहिए. आई वांट दिस. ठीक है, ये बना देते हैं रैंडम वैल्यू ताकि दिखे. ये रैंडम वैल्यू का ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, स्कैटर प्लॉट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे. इस स्कैटर प्लॉट को क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ मैं. प्लॉट. ओके, अब इसको रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं. ओके, अब मैं इसका एवरेज निकालता हूँ. ये एवरेज आ गया, which is 28. तो हमारा एवरेज यहाँ पे होगा समवेयर 28. ठीक है, ये म्यू है जो इसे रेफर करता है. अब मुझे क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है देख लो. वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है xi. यहाँ पे xi मतलब क्या है, ईच इन एवरी डेटा पॉइंट, ईच इन एवरी, जिसमें आपको कहा था मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक डेटा का डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ओवरऑल कैलकुलेशन से मैं उसको कंक्लूड करूंगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से हर एक को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. करेक्ट. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इसे मैं क्या करूंगा, माइनस म्यू माइनस म्यू माइनस म्यू माइनस, हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके करूंगा मैं. उससे क्या होगा, मुझे हर एक बार एक आंसर मिलता जाएगा. क्या मिलेगा मुझे, हर एक बार एक डिफरेंस की वैल्यू मिलती जाएगी. यहाँ पे कैसे होगा देखो मैं आपको बताता हूँ. इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस ये जो है, इसको ये वाला रेफरेंस रहेगा, इसको कर देते हैं एंटर. ये हो गया आपका, ये आपका आंसर. ओके, और कहां तक लेके आएंगे हम इसे, यहां तक लेके आएंगे. ओके, अब आपको यहाँ पे डेटा में दिख रहा होगा कि अरे सर कहीं पे तो माइनस आया है, कहीं पे पॉजिटिव है. ओके, तो डेटा में तो इफेक्ट होगा. हाँ होता है ना, डेटा में इफेक्ट जरूर होता है. क्यों इसका इफेक्ट होता है देखो मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज देर आर सम वैल्यूज विच आर बिलो एवरेज एंड देर आर सम वैल्यूज विच आर अबव. तो ऑब्वियसली जो अबव रहेंगे उसका आपको पॉजिटिव आंसर आएगा, और जो बिलो रहेगा वो आपको नेगेटिव आंसर देगा. करेक्ट. व्हाई, बिकॉज वी आर सेइंग दैट xi मींस each and every value. So each and every value minus average will always give you a minus negative answer. Clear है guys? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Now प्रॉब्लम यहाँ पे अब ये आता है कि अगर
अब मैं इसका एडिशन है, मैंने क्या कहा था, सम करूंगा मैं इन सबका, isn't it? So if I do a summation over here is equal to sum of all those variances, ये आता है 0, मतलब डेटा में तो वेरिएंस ही नहीं है, तो जो मैं देख रहा हूं ये तो मेरे लिए धोखा है, ये तो मेरा आंखों का धोखा हो गया, मेरे लिए इल्यूजन है। बट इट इज नॉट लाइक दैट, देयर इज वेरिएंस, मुझे दिख रहा है वहां पे वेरिएंस है, बट फिगर तो बताता है नहीं है। क्यों हो सकता है ये बताओ तो? क्या है इसके पीछे रीजन पॉजिटिव बताइए? नेगेटिव कैंसल्स आउट। वेरी गुड, वेरी प्रिसाइज, पॉजिटिव यस यस, वेरी प्रिसाइज आंसर। कौन है, कौन बंदा है भैया? रतीश। हैं? अरे बताओ, बिंदास बताओ, क्या है रतीश तक? प्रतीश, प्रतीश, र रतीश, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, हाँ, ओके, गुड गुड, अच्छा है। स्टैटिस्टिकल केस में थैंक आप यू अच्छा सर। वर्क कर रहे हो, इट इज वेरी गुड। ओके, नाउ अगेन इट इज, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही मतलब आईक्यू एकदम बढ़ गया, ऐसे उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, किसी से कंपेयर मत कीजिएगा अपने आप को, और कोई कंपेयर भी मत करो इनसे। ओके, एवरीवन हैज इट्स यूनिक ट्रेड्स। इट इज गुड कि वो आंसर दे रहे हैं, मैं तो उनको ऐसे बोल रहा हूँ कि यस, गलत हो कहीं भी हो, आपका आंसर देना जरूरी है। इट इज वेरी गुड दैट यू आर ऑल्सो हैविंग दैट नॉलेज कि यस, द वैल्यूज ओवर हियर आर नलिफाइंग ईच अदर। ओके, नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका शायद किसी को ऐसा लगे कि जो उन्होंने आंसर दिया है, हाँ वो तो 12, टोटल नंबर ऑफ काउंट 12 है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्या पता ये अगर 4-5 कम हो जाए तो शायद नहीं हो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दैट। अगर यही चीज में आपको ना सिर्फ 2 नंबर, ओके लेट्स से 10, अच्छा आप कोई रैंडम नंबर बताओ, चलो कोई भी रैंडम नंबर बताओ, 2 नंबर कोई भी रैंडम नंबर बताओ, 7. और 5 43। ठीक है चलो 7 और 43, इसका एवरेज निकालता हूँ। 25 आ गया। अब देखो, देखो क्या आएगा, 0, ये होता ही है। ओके, अब आप बोलोगे ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, मैं आपको बड़े डेटा सेट क्या हो जाए छोटे डेटा सेट में बताता हूँ। होता क्या है देखो, ये 2 पॉइंट है, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली 2 पॉइंट्स। क्या करता है ये, उनका एवरेज निकालता है, एवरेज कितनी निकला 25। वो क्या करता है, दोनों के बीच की वैल्यू ना, दोनों के बीच की वैल्यू मतलब क्या है, आप यहां से इसके तरफ आए या यहां से इसके तरफ जाए, अगर दोनों के बीच की वैल्यू है 25, इस तरह से अगर निकालता हूं, तो दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, आप यहां से इसके माइनस करोगे और यहां से इसको माइनस करोगे, तो दोनों का सेम ही आएगा ना आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एवरेज निकालते हो तो हर एक वैल्यू का एक दूसरे के साथ में नलिफाई होना लाजमी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes यस सर। तो ये यहाँ पे अगेन 2 नंबर लो, 4 नंबर लो, 6 नंबर लो, इवन ऑड का भी इसमें कोई कंसर्न नहीं, ओके 3 नंबर लोगे तो भी वही होगा। सो बाय टेकिंग एनी वैल्यू इफ यू कैलकुलेट इट, आपको हमेशा 0 ही मिलता है सम। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि सर जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ये जो है समीशन ऑफ, फिर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि आंसर तो 0 आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपने एक और चीज ऑब्जर्व करना है, एक्स आई और एक्स आई मैं माइनस करते हुए जो कर रहे हैं हम स्क्वायर भी कर रहे हैं, स्क्वायर से क्या होता है, -3 का स्क्वायर क्या होता है आंसर? 9 9 9। 9 व्हाई नॉट -9? सर, और रिमूव कर देते। सर माइनस Square माइनस में- प्लस होता है। plus माइनस माइनस Exactly. प्लस। करेक्ट है ना? तो यही लॉजिक है। yes तो हमें जो आउटपुट आ रहा है आंसर 0, हमें उसको नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और फिर बाद में सम करना है। क्लियर है? yes sir यस सर। कहाँ है Yes. मेरा Excel? हाँ। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, अब मैं क्या करूंगा, इन सब वैल्यू का स्क्वायर करता हूं इज इक्वल टू, अब एक्सेल में कैसे करते हैं, पावर करके फंक्शन का नाम है, पावर यूज करना है और बताना है कौन से नंबर को करना है, ये सिलेक्टेड है,
इसे मैं पहले एक्टिवेट कर देता हूँ। ये हो गया। कौन से सेल को? ये वाले सेल को। अच्छा, कितना पावर? पावर कितना? स्क्वायर में करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? कॉमा 2 हम क्या, हाँ, और एंटर कर देंगे। क्या होगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने से होता क्या है, जितने भी आपके नंबर्स है ना, वो सब होता है पॉजिटिव, वो सब हो जाते हैं पॉजिटिव। और उसका सम करोगे तो क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा आंसर, मतलब आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रहे। अच्छा, अब हमारे डेटा सेट में क्या चेंज हुआ? लेट मी टेक दिस वन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी डेटा है, हमने क्या किया, 28 करके जो हमारा एक वैल्यू यहाँ पे रखा था, मीन वैल्यू, हम क्या कर रहे थे, हर एक का कैलकुलेशन डिफरेंशिएट कर रहे थे और बाद में ऐड कर रहे थे, जिसके आंसर 0 आ रहा था। तो हमने क्या कर दिया, जो भी डिफरेंस आएगा वो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा नाउ, अब वो स्क्वायर करने से हर एक पॉइंट, अब ये यहाँ से है ना, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या है, पॉजिटिव। मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव में शिफ्ट हो रहा है। मतलब सब के सब क्या है, इस लाइन के नीचे कुछ भी नहीं है, सब के सब क्या है, ऊपर है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज सी, मैं जो एवरेज से एक वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं, एक एवरेज वैल्यू के बेसिस में कंपेयर कर रहा हूं चीजों को, मुझे क्या देखना है, मेरे एवरेज से कितना दूर है आया हुआ रियल वैल्यू, मेरे एवरेज से कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है। मुझे ये नहीं चेक करना है कौन से डायरेक्शन में, ओके। मुझे ये नहीं चेक करना है कि अच्छा उसके अबव है या उसके नीचे है, मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन कितना डिफरेंस है, कौन से डायरेक्शन में, उसका मुझे लेना देना नहीं है। तो उसके से मैंने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव हटा दिया, सबको पॉजिटिव कर दिया। अब ये डिफरेंस यहाँ पे रहे, ओके, ये या, ये ऊपर रहे या नीचे रहे, मेरे को कोई मायने नहीं रखता, इजंट इट। जो यहाँ पे डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 9 है, यहाँ पे -9, मैं ऊपर कर दूंगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेड दैट, ये तो हमने कर दिया, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से जो 9 आना चाहिए था, उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया, वो 81, जो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए था वो जा रहा है डायरेक्टली यहाँ पे भाई, मतलब यहां से सीधा यहां चले गया। ये हो गया उसकी प्रॉब्लम। तो जो आपका चार्ट एक छोटे से ग्राफ में बन सकता था, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल ये अगर स्केल है आपका, जो अगर ये स्केल लेट्स से 0 से लेके 10 इनके बीच में बन सकता था, अब वो क्या बनेगा, 0 से कितनी वैल्यू यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू आई डोंट नो, 7, दिस इज हाउ मच, 1000 लाख 94. 7, 7 करोड़ 5 लाख हाँ, 7 करोड़ 5 लाख 41,000, इतने। अच्छा, इससे भी ज्यादा भी वैल्यू ऊपर, बट ठीक है, नहीं आओ। तो करोड़ में चले गया वो, जो कहाँ पे आना चाहिए था, थाउजेंड्स में। तो जहां पे इस शीट में बन सकता था, अभी क्या करना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा डेटा का शीट लेना पड़ेगा, तब जाके प्रोबेबली वो भी ना बने। तो क्या होगा, आपका डेटा बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया, क्या हो गया, वो रैंक अप हो गया। रैंक अप नहीं होगा तो उसे पावर अप हो गया ना, बहुत वैल्यू क्या हो गया, एग्जैजरेटेड बढ़ गई है। ये उसका साइड इफेक्ट है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes. तो ये जो अभी आंसर आया है, ओके, इसके साथ में सब इतना नहीं छोड़ना है, क्या करना है, फॉर्मूले में बताया डिवाइडेड बाय एन, कितने नंबर ऑफ काउंट है, 1 2 जितने भी ये टोटल है, कितने हैं, 12 नंबर है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 12, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया है, देखो, हम्म
तो उन्होंने क्या किया देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन करके एक टर्म है, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारा ये जो वैल्यू है जो हमने अभी जनरेट किया यहाँ पे, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी ये, ओके। एक्चुअल में क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, इट शुड बी, ये कौन सा है, हाँ ये जो वेरिएंस है, ये जो आंसर आया, एक्चुअल में क्या आना चाहिए थी वैल्यू, इट शुड बी थाउजेंड्स। वो थाउजेंड्स क्या है, ये आना चाहिए था 16078, ओके। मगर आया क्या, ये आया। सिंस इट इज स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर्ड वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को निकालने के लिए अंडर रूट, ओके। तो मैं क्या करूंगा, उसे अंडर रूट कर दूंगा। तो अंडर रूट का जो आंसर आएगा वो आएगा ये, और ये एक्चुअल वैल्यू से रिलेवेंट है। जो आपका एक्चुअल में डेटा जहां पे है उसमें देखोगे तो हाँ 16,078 जो भी वैल्यू, यस इट इज समवेयर इन बिटवीन, ये उस रेंज में बैठता है और यही आना चाहिए। तो डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फंक्शन लगाओ या आप उसे इस तरह कैलकुलेट करके करो, आंसर वही आना है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है किस तरह कैसे होता है। इसे पता क्या चलता है, वेरिएंस से आपको ये पता चलता है कि डेटा में किस तरह का डिस्टर्बेंस है या फिर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके एवरेज वैल्यू से, आपके एवरेज से कहां कहां कितने कितने दूर तक डेटा गया है। जितना क्लोज डेटा रहेगा उतना अच्छा, जितना दूर रहेगा उतना वो बुरा, बुरा नहीं कहूंगा बट उतना आपका डिविएशन ज्यादा है, प्रोसेस आपका खराब है या फिर गलत है। वेरिएंस आपको पता चल गया। और वही चीज अब वेरिएंस क्या करता है, स्क्वायर करता है ना वैल्यू को, तो उस स्क्वायर वैल्यू को वापस से उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट को जो कर रहे हैं उसको प्रोसेस का नाम दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन, नथिंग अदर देन दैट। ये मैंने आपको करके दिखाया है स्क्वायर रूट को, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फंक्शन कॉल आउट किया है, आंसर दोनों का सेम है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes. फॉर्मूला भी देखो, दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो दोनों सेम है। देखो जो अंदर का फॉर्मूला सेम है, ये भी यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, बस क्या डिफरेंस, उसको अंडर रूट किया गया। So variance calculates how much, let's say, diverged data is, how much spreaded data is, whereas understanding that spreaded data, it squares the value. It emphasizes in such a way that it becomes twice of its value. So to avoid that distribution, to get its natural form, हम क्या करते हैं, उसे standard deviation को रूट कर देते हैं, उससे आपका वैल्यू जो भी उसके रेंज में आ जाता है। क्लियर है गाइस? एवरीवन फाइन विद इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो पहले बिजनेस मोमेंट में हम क्या करते हैं, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा वैल्यू मिडल में रखना है, वेदर मीन, मीडियन और मोड। वंस वी डिसाइड दैट वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस एवरेज या फिर जो भी आपकी वैल्यू है, सेंटर वाली वैल्यू, अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यू जो भी रियल पॉइंट है उसको, डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कितना डिस्पर्स डेटा है, ये हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट बिजनेस मोमेंट सेंट्रल टेंडेंसी, सेकेंड बिजनेस मोमेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, एंड थर्ड उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हम अभी कल लाएंगे तो मैं आपको और चीजें बताता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. ओके, थैंक यू फॉर द sir. प्रेजेंस। या थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ अमर, आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। सर आता जे काही आपण स्टॅटिस्टिक मधल्या काही व्हॅल्यूज काढत आहोत ते आपल्याला डेटा जे क्लिनिंग राहते तिथे यूज केलं जातं का ते? हा पुढे ते यूज होईल, पण पहिले आपल्याला हे समजावं लागेल की का काढायचं है ना, त्याच्यासाठी डिस्कशन चालू आहे। ओके, मग याच्यानंतर आपल्याला ते समजून येणार की काय कुठे यूज करायचं ते. यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू. ओके।